गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून and good evening प्यारे बच्चों. Today we will be discussing about a very amazing phenomena, that is total internal reflection. In your real life, you all must have observed this phenomena. But I don't know you were having the understanding of this thing or not. But now let's first understand the phenomena, and then we will be explaining where and in which all situations, okay, probably you have observed this particular thing. Okay, let's go ahead with total internal reflection. For its better understanding, let's study this diagram first. Okay? We know this thing very well. When the light goes from rarer to denser medium, it goes towards the normal. But when the light goes from denser to rarer medium, it goes away from normal. The same thing I have taken here, considered here. This is glass medium, glass, that is denser medium, below this interface, and above this we are having air acting as the rarer medium. And we are having this monochromatic source. Monochromatic mean emitting single wavelength, single color wavelength, you can say. Okay? Now you just concentrate in this ray A. Okay? Now this is incidenting on the interface of this glass and air. This is interface. This is incidenting on the interface normally. Angle of incidence is equal to 0 degree, and it crosses at the same angle, that is 0 degree, mean in the same line. Now in this particular situation, as the light strikes here, some of the light get reflected and rest of the light that moves ahead in the other medium as shown in diagram. Okay? Now concentrate in this ray B. The ray is, moving like this, making some finite angle of incidence. It is going from denser to rarer medium. Some of its part is reflected back in the same medium, obeying the laws of reflection. I mean this angle and this angle. This is angle of incidence, this is angle of reflection. Both will be equal. And what I said, some of its portion, this light is incidenting on the interface. Some of its portion will be reflected back in the same medium, and some of its portion is going to other medium. As the light is going from denser to rarer medium, okay, the light is moving away from the normal. You just see this angle of refraction. This is greater than angle of incidence. Okay. Now, ray C, this ray. Angle of incidence is increased with respect to the previous situation. As the angle of incidence is increased, okay, you see, some of this ray is incidenting on this interface. Some of its part is reflected and some of its part is refracted. Okay. As we have increased the angle of incidence, angle of refraction is also increasing. Angle of refraction is also increasing. Angle of incidence we have increased. Okay. Angle of refraction also is increasing. Moving to next.
D situation. Okay. This ray is made to incident on the interface. Some of its part is reflecting in the same medium, obeying the laws of reflection, that is this angle and this angle both will be equal, and some of its part, some of its portion will be going to other medium. Means some of its portion is undergoing refraction. As the light is going from denser to rarer medium, so it is moving away from normal, and as the angle of incidence is increased, okay, with respect to the previous situation, okay, so angle of refraction also is increased. It's okay. If you concentrate in the next situation, concentrate in the next ray, this is made to incident over here on the same interface. Angle of incidence is increased with respect to previous situation. But what is happening over here? Okay, light is reflected similarly, है ना? Obeying the laws of reflection. But what is happening to refracted light? Refracted light, okay, what is happening? Okay, angle of refraction is increased, and that is increased to extent कि जो हमारा angle of refraction इस situation में है, okay, कितना बन गया? R is equal to 90 degree. That is a right angle basically. So this is a very specific case. This angle of incidence in the denser medium corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is a right angle or is equal to 90 degree. That angle of incidence is called as critical angle. Critical angle. This holds the key basically. This is the specific value of angle of incidence corresponding to which we get the angle of refraction in the rarer medium as right angle. This तभी इसको हमने critical angle कह दिया और इसको हम लिखते हैं C से. Fine. Now, when angle of incidence, okay, is increased beyond this limit, beyond this I, which is critical angle, है ना? When the angle of incidence is increased beyond the value C, okay, what is happening? See what is happening. The light ray is, not going to other medium. Not going to other medium. It is, reflecting back in the same medium. In this particular situation, when the angle of incidence is greater than critical angle, okay, no refraction, no reflected light is there. All the light that is, bouncing back in the same medium without any loss. Light is reflected back in the same medium. Now, this phenomena, when the light is reflected back totally in the same medium, this is called as total internal reflection. Total internal reflection. Okay, तो जब भी इस इंटरफेस के ऊपर कोई भी रे इस तरह से इंसिडेंट करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन critical angle, okay, this is I is equal to C, critical angle, and this is I greater than C. Okay, तो जो भी जब भी जिस सिचुएशन में भी रे इस तरह से इंसिडेंट करेगा फ्रॉम डेंसर मीडियम, ओके, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, okay, the light ray will be reflected back in the same medium. Okay, this particular situation is called as total internal reflection. Why we are saying total? Because in this situation, light is not going to, no part of light is going to other medium.
कोई लाइट का स्प्लिटिंग नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, टोटली लाइट सेम मीडियम में आ रही है। ओके, तो इस कारण से इसको कहा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो in this situation, that is F, the light is, this ray is having total internal reflection associated. Okay, one more case I am drawing, just see that. This is ray G I have created. Now this ray is incidenting on the interface at an angle of incidence which is greater than critical angle. This angle of incidence also is greater than critical angle. So what will be happening to this particular ray? What is happening? See, light is not going to other medium. It is reflecting back again in the same medium. So this is a situation associated with total internal reflection, and this situation also is associated with total internal reflection. Okay, now if I ask you, what are the necessary things for total internal reflection to happen? What will be your response? क्या कहोगे आप सिंपल एक बात सोच लो, अगर लाइट रेयर से डेंसर आ रहा होता तो क्या यह सिचुएशन आती? आंसर इज नो, ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं। ठीक, डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल आ रही है, तो धीरे 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 इंटरफेस तक आई, और उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया गया तो इट इज बैक इन द सेम मीडियम। फाइन, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दैट लाइट शुड बी गोइंग फ्रॉम optically denser medium to optically rarer medium. First thing. Now conditions for the total internal reflection to happen. Okay, that is, light must be going from denser medium to rarer medium. Denser when I am saying, rarer when I am saying, I mean optically denser and optically rarer medium. Fine. So light must be going from denser medium to rarer medium. Fine. Second situation क्या था? Second situation is, just analyze the diagram again. See, this ray F and this G, okay, these both rays are undergoing total internal reflection. Okay, what's the situation for? Angle of incidence is greater than critical angle, and for this also angle of incidence is greater than critical angle. Okay, so this is the second situation, second condition for the TIR, total internal reflection, to happen. The second condition is angle of incidence in the denser medium must be greater than critical angle. It's okay. So these are the two, basic conditions for total internal reflection to happen. Okay, now let's concentrate in the specific situation of a critical angle. Okay, that will be providing us, so much of information. ठीक है, और बहुत यूटिलिटी वाला चीज है क्रिटिकल एंगल। तो लेट्स फर्स्ट कंसंट्रेट in the situation. I'm talking of ray E. This is incidenting from a denser medium, okay, and as striking on the interface, as incidenting on the interface, angle of incidence is such that angle of refraction in the rarer medium is a right angle. Okay, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या कहा था? क्रिटिकल एंगल। ओके, लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इनटू अकाउंट। एक और डायग्राम क्रिएट करते हैं। ग्लास, ठीक है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. This is interface dividing air and glass. Okay, so denser to rarer it is going, light is going. Fine. तो angle of incidence and angle of refraction mark करते हैं.
This is normal drawn. Okay, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन डिफाइन करने के लिए ये लो जी, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क किया. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. फाइन. नाउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन which is a right angle basically. Angle of refraction is a right angle. Light is going from denser to rarer. तो क्या बताया था आपको? Angle of incidence corresponding to which angle of refraction is a right angle. That angle of incidence is called as critical angle. ये लो बेटा जी. तो this angle of incidence basically is the critical angle. ठीक है. अब लाइट आपका हुआ क्या, यहां से क्रिटिकल एंगल के ऊपर इंसिडेंट किया तो अलोंग द इंटरफेस चल पड़ी एंड सम ऑफ पार्ट इट्स पार्ट इज रिफ्लेक्टेड. फाइन. ठीक है. तो नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. तो मैं इस रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंगली लिखता हूं. ठीक है. अप्लाइंग स्नेल्स लॉ टू द सिचुएशन. तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ टू द सिचुएशन. अब लाइट कहां से कहां जा रहा है? ग्लास टू एयर. सो आई विल बी राइटिंग जी म्यू ए. लाइट इज गोइंग ग्लास टू एयर विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. फाइन. अब I is equal to C, so I'll be having sine of C, critical angle, divide by sine R. Sine R is 90 degrees, so I'll be writing here sine 90. Sine 90 is equal to 1. And one more thing, if I want to have this refractive index in standard format, है ना, तो क्या लिखूंगा इसको? refractive index of glass with respect to air. तो इसका रिवर्सल करना पड़ेगा. Okay, I know this thing that G mu A inverse is equal to A mu G. Now, अगर इसको हम इस तरह से फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना. सेम थिंग मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं. तो मैंने सेम थिंग यहां पे जब अप्लाई किया, ओके, तो व्हाट आई एम गेटिंग, इसका रिवर्सल मिला A, ओके, म्यू G इज इक्वल टू, रिवर्स कर दो इसको, साइन ऑफ 90 डिग्री ओवर साइन ऑफ C. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. ओके, तो मैं इसको म्यू लिख सकता हूं. ओके, म्यू इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज साइन ऑफ C. नाउ see, there is a fixed relationship between critical angle and refractive index. Mean critical angle basically depends on refractive index of the medium. It's okay. See, for some of the mediums we are having information about critical angle. Okay, and that is calculated using the same relation which we have derived. Mu is equal to 1 over sine C. For ice, refractive index is 1.31 and the corresponding critical angle is 49.76. For water, 1.33, 4, 8.76. Alcohol, turpentine oil, okay, crown glass, dense glass, and then diamond. Fine. Diamond has maximum refractive index and minimum critical angle. It's okay. For glass, which we use commonly, that is 1.52. Yes. So corresponding to that, we have nearly 41 degree as the critical angle. Okay. So थोड़ा सा एक्सपोजर आपको मिला होगा. ओके, ठीक है. तो किस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या है, इसको आप आराम से, इसको आप क्रैम भी कर सकते हो, और नो प्रॉब्लम, क्रैम करने का भी जरूरत नहीं है. नोइंग द वैल्यू ऑफ म्यू यू कैन फाइंड साइन सी, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. नाउ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग of total internal refraction,
लेट्स टेक अ राइट एंगल्ड प्रिज्म. फाइन. ओके, देखो, राइट एंगल्ड प्रिज्म, दिस इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म. इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है. दिस एंगल इज 45 डिग्री. आइसोसेलेस होगा तो 45 होगा ना. एंड दिस एंगल ऑल्सो इज 45. नो व्हाट इज डन बेसिकली, अ रे इज मेड टू इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दिस फेस. ठीक है ना, नॉर्मली ऑन दिस फेस. ड्रॉ द path after refraction. Okay? See, this is a ray made to incident on this particular face of the prism. Normally. अब normally है तो बट obvious एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा. नॉर्मली ही निकल जाएगी आगे. इट इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फेस ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, अब यहां पे वो स्ट्राइक कर रही है. अब यहां पे उसका पाथ देखो आप. यहां तो वो रेयर से डेंसर जा रही थी, कोई सिचुएशन चेक की बात नहीं थी. नाउ इट इज गोइंग डेंसर टू रेयर. अब डेंसर टू रेयर अगर जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोबेबिलिटी हो सकता है. तो अब हमें क्या चेक करना है? नाउ वी नीड टू चेक अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि किस एंगल के ऊपर ये इंसिडेंस कर रही है. एंड क्या वो एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है या ज्यादा है या उसके इक्वल है. ठीक, ओके, लेट अस सी. दिस इज नॉर्मल ड्रॉन. अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45. दिस रे इज पैरेलल टू दिस फेस, है ना. तो ये वाला एंगल कितना हुआ? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक, वी आर यूजिंग ग्लास. ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 1.5 अभी, है ना. एंड 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम कैलकुलेट किया जाए, म्यू इज इक्वल टू 1/sin ऑफ c. प्लेसिंग वैल्यू 1.5 हियर, वी आर गेटिंग c नियरली इक्वल टू 41 डिग्रीज. ओके, नियरली इक्वल टू 41 डिग्री. नाउ अब ध्यान देने वाली बात है, इस ग्लास के लिए, इस मीडियम के लिए जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो है 41 डिग्री. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना क्या है? 45 डिग्री. इन द सिचुएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. नाउ एज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. इंसिडेंस एंगल ऑफ जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो 41 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 है. तो ग्रेटर हो गया कि नहीं? व्हाट विल बी हैपनिंग? द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम एंड विल बी अंडरगोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां से ये इस तरह से आएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो. सी, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं. नाउ सी, जब वो यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा, ये 45 तो ये 45 यहां पे आके नॉर्मली इंसिडेंट करेगा. अब नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो बिल्कुल सीधा सीधा बाहर आ जाएगा. इट्स ओके. लाइट यहां पे भी डेंसर टू रेयर आ रही है, बट यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने का मीनिंग ही नहीं है यहां पे. इट्स ओके. ठीक है, तो यहां पे इस इंटरफेस के ऊपर जब डेंसर टू रेयर लाइट जा रही थी, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक किया, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना. तो शायद आपको कुछ हिंट मिला हो कि व्हाट बेसिकली इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट दूसरे मीडियम में जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई, तो ये स्पेशल सिचुएशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली. ओके, तो राइट एंगल्ड प्रिज्म, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म को ही यूज करता हूं. एक और सिचुएशन लेते हैं. ये अपना सिचुएशन 2 है. ठीक है, हमने राइट एंगल्ड प्रिज्म को इस तरह से रखा है. इस सिचुएशन में हम कर क्या रहे हैं? ठीक है ना, ये जो फेस है ना हमारा, ये वाला, इसके नॉर्मली एक रे को इंसिडेंट कराते हैं एंड सी दैट, ओके, हाउ दैट विल बी प्रोग्रेसिंग. सी, इस रे ने इस पर्टिकुलर फेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंस किया तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा.
यहां पे आके इंसिडेंट किया। अब यहां देखना, डेंसर टू रेयर लाइट जा रही है। नाउ चेक अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसके लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। दिस इज नॉर्मल ड्रॉन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया तो ये एंगल 45 है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45। अभी हमने बात की थी इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है, 41 डिग्री। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा इसका, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा ही, है ना। चलो इसको प्रोग्रेस करवा देते हैं, फिर यहां से बिल्कुल सीधा ऐसे आएगा। ठीक, सी हाउ इट्स ओके। तो ये इस तरह से आ रहा है, पैरेलल टू द फेस हो जाएगा ये। ठीक, अब यहां पे नॉर्मल बनाओ, क्योंकि यहां जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो यहां पे फिर से वही सिचुएशन आ रहा है, डेंसर टू रेयर वाला। ओके, प्लॉटिंग द नॉर्मल, ये देखो इट्स ओके। तो अब दोबारा से क्या बन रहा है सिचुएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा 45 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो फिर से क्या होगा इसका, अगेन इट विल बी अंडरगोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से निकलेगी 45 का एंगल बनाते हुए, तो यहां नॉर्मली स्ट्राइक करेगी और यहां से बिल्कुल सीधी बाहर। इट्स ओके। होप दीज सिचुएशंस हैव मेड द understanding of total internal reflection better. Now in application, total internal reflection basically कहां यूज होता है। आप लोगों ने डायमंड तो देखा ही होगा, रियल में नहीं देखा होगा तो वीडियो में तो देखा होगा ना, है ना। होता क्या है डायमंड के चारों तरफ उसका हेलो होता है, ब्राइटनेस नजर आती है, जैसे भगवान जी के हेड के तरफ नजर आती है ना, चारों तरफ प्रकाश नजर आता है ना, लाइट नजर आता है ना। इन द सेम वे डायमंड के चारों तरफ नजर आता है। क्यों, वाई, दैट जो लाइट आ रही है ना डायमंड के चारों तरफ, ओके, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। वेरी गुड एग्जांपल, सी हाउ। नाउ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड बेसिकली इज अ श्योरिटी टेस्ट ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड जितना ज्यादा ब्रिलियंस दिखाएगा, ओके, व्हेन सम लाइट विल बी मेड टू इंसिडेंट ऑन द डायमंड, ओके, जितना ज्यादा ब्रिलियंस दिखाएगा उतना गुड विल बी द डायमंड। ठीक, ओके, देखो ध्यान से, डायमंड बेसिकली हमें पता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। वैल्यू ऑफ म्यू फॉर द डायमंड इज लार्ज, तो c का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा। मतलब critical angle for a diamond piece will be small। अब आपने क्या किया, आपने सपोज करो दिस इज डायमंड, बना ही लेते हैं कुछ। सपोज ये एक डायमंड पीस है, क्या किया गया, एक लेजर बीम लिया, इसके ऊपर इंसिडेंट किया गया, वैल्यू ऑफ सी इज वेरी मच स्मॉल। तो बट ऑब्वियस इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, लाइट इसको एंटर करेगा तो वैल्यू ऑफ सी स्मॉल होगा। क्या, यहां से जब ये लाइट ओके एक बार एंटर कर गया तो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, एंड थोड़ा लाइट लॉस के कारण चारों तरफ इसके इस तरह से ब्राइटनेस दिखाएगा, इस तरह से ब्राइटनेस दिखाएगा। दैट ब्राइटनेस ऑल अराउंड बेसिकली इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ओके, ब्राइटनेस इसके चारों तरफ बहुत अच्छा सा, जैसे आप लोगों ने वो स्नेक का मणि टाइप कहते हैं ना, दैट थिंग। ओके, ठीक, दिस डिफाइंस द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक, जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट किया, लाइट एंटर कर गया एक बार, फिर इसके अंदर ओके इसकी कटिंग इस तरह से किया जाता है, इसके अंदर से लाइट बाहर ही नहीं आ पाता है। ठीक, वो अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंडर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलता रहता है, वो अंदर ही घूमती रहती है और थोड़ा लाइट बाहर आता रहता है। फाइन, तो लाइक दैट इसके चारों तरफ एक हेलो क्रिएट हो जाता है, दैट डिफाइंस द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ओके, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व्ड, मिराज। ओके, मृग तृष्णा भी कहते हैं इसको। फाइन, होता क्या है बेसिकली,
डेजर्ट्स में गर्मी के कारण दिस इज ऑब्जर्व बेसिकली। फाइन, होता क्या है, लाइट जैसे ही ग्राउंड पे आता है, ठीक है ना, तो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया लाइट ने, ग्राउंड को हीट करेगा। इसके साथ एयर के जो लेयर्स कांटेक्ट में आए, है ना, लेयर्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में थे, फिर ये वाली लेयर इसके कांटेक्ट में, ये इसके एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। तो ये वाला जो है ये हमारा ग्राउंड पार्ट है। फाइन, ठीक। तो हो क्या रहा है बेसिकली, सनशाइन आया, ग्राउंड को उसने हॉट कर दिया। अब ग्राउंड के हॉट होने के कारण उसने एयर को गर्म किया, इस लेयर ने नेक्स्ट को हॉट किया, इस लेयर ने नेक्स्ट को, इस लेयर ने नेक्स्ट को, इसको नेक्स्ट को, ठीक है। तो एज वी आर गोइंग अप द टेम्परेचर ऑफ द लेयर इज रिड्यूसिंग, T reduces as we go upward। तो अगर T reduces तो डेंसिटी क्या होगी, जहां टेम्परेचर कम है वहां डेंसिटी ज्यादा, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां डेंसिटी कम। ओके, अब सपोज यहां सामने कुछ ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग, एक ट्री ही ले लेते हैं। ओके, ट्री हमने एज्यूम कर लिया यहां पे एक, ओके, उस ट्री, ठीक है, दिस इज द ट्री। उस ट्री का इंफॉर्मेशन लेके रेज जो हैं दे आर कमिंग। अब जब वो रेज उसका इंफॉर्मेशन लेके, उसके हाईएस्ट पॉइंट का इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है ना, प्रोसीड करेंगी, तो देखना ध्यान से, ये रे यहां से चला इंफॉर्मेशन लेके, ये इस रे को, इस लेयर को एयर की स्ट्राइक करेगा, ये रे करेगा। नाउ डेंसर टू रेयर, तो ये डेंसर टू रेयर जाएगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, कर गया बेंड। अब ये देख लो, बेंड कर गया, ठीक है। अब इसका डेंसिटी और कम है तो डेंसर टू रेयर, अब ये और बेंड कर जाएगा, ठीक। डेंसर टू रेयर फिर से और बेंड कर जाएगा। बेंड करते करते व्हाट विल बी हैपनिंग, एट सम लेयर, किसी भी लेयर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, वहां से क्या होगा, जो रेज होंगी they will be going in the same medium like this। यहां पे I है, ओके, ये लो, ठीक, ये I। अब इस I को आपको बताया था सीधा लाइन में देखने की, एंटर करेगा उसी लाइन में, ये देखेगा कि ये ट्री इसको ऊपर साइड नजर नहीं आएगा, डाउन साइड नजर आएगा। तो यहां से देखेगा तो ये ट्री इसको फाइनली यहां पे नजर आएगा, डाउन साइड, ऐसे उल्टा, ओके, लाइक दिस, ठीक है। तो उल्टा कब नजर आएगा, जब कुछ यहां पे ट्रांसपेरेंट, यहां पे जो ग्राउंड है, जो अर्थ है, उस पे कुछ ट्रांसपेरेंट हो, लाइक वाटर, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहां पे वाटर है। इस आई को ऐसा फीलिंग देगा कि इस सरफेस के ऊपर वाटर है। फाइन, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहां वाटर तो नहीं है, दिस इज ड्राई, वाटर तो नहीं है ना, बट जस्ट आई इज इल्यूज्ड। व्हाई, बिकॉज यहां पे हो क्या रहा है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। Sometime when it is going from denser to rarer layer of the air, angle of incidence become greater than critical angle, and our eye feels that के कुछ यहां पे ट्रांसपेरेंट है, that is like water, क्योंकि ये ट्री उल्टा नजर आएगा। तो this particular thing defines, this basically is mirage, okay, ठीक है, fine। तो hope you have understood total internal reflection, okay, in a better way। go through content, book में और examples इसके given हैं, go through that, okay, that will be helping you more। and if you find any confusion, fine, further if you find any confusion, okay, so let me know about, then we will be taking the things again, okay। thank you, have a nice time।